Good morning, everyone. In this video, we are going to learn a new lesson from the textbook First Flight. The name of the lesson is The Proposal, written by Anton Chekhov. I hope you all have heard this word proposal. Many times we are using this word, right? For marriage proposal, the word is used. If we are asking for any plan or suggestion, at that time also we are using this word, right? So here one activity is given. So let's see what is that activity. The word proposal has several meanings. Can you guess what sort of proposal the play is about? ठीक है, प्रपोजल का बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं. क्या आप गेस कर सकते हैं कि इस प्ले में, इस ड्रामा में कौन से मीनिंग पर यह ड्रामा है? देयर आर 3 सजेशंस गिवन. द फर्स्ट इज अ सजेशन, प्लान और स्कीम फॉर डूइंग समथिंग. कुछ करना है, उसके लिए प्लान बनाना, सजेशंस देना, उसको भी प्रपोजल बोलते हैं. सेकंड, एन ऑफर फॉर अ पॉसिबल प्लान और एक्शन. किसी को ऑफर करना, ठीक है, किसी प्लान के लिए, एक्शन के लिए, उसे भी प्रपोजल बोलते हैं. थर्ड, द एक्ट ऑफ आस्किंग समवन्स हैंड इन मैरिज. ठीक है, मैरिज के लिए किसी का हाथ मांगना, उसे भी प्रपोजल बोलते हैं. सो दीज आर द 3 मीनिंग्स गिवन इन दिस सजेशन. व्हाट डू यू थिंक? दिस ड्रामा इज अबाउट विच मीनिंग? फर्स्ट वन, सेकेंड वन और थर्ड वन? लेट्स सी. Okay, there is one article given in this box about a Russian wedding. Let's see what is a Russian wedding and how they are celebrating their marriage functions. Do you know anything about a Russian marriage ceremony? Read this article about a Russian wedding. Let's start the article. Preparation for a Russian wedding. A Russian wedding is very simple. The planning only includes arranging for rings, bride's dress, cars and a reception. Okay, so this is the arrangement before the marriage. Earlier, the bride's family paid for the reception, but nowadays, brides and groom's families usually share expenses. A Russian wedding lasts for 2 days. Some weddings last as long as a week, and the occasion becomes something to remember for years. Okay, in our country also or in our state also, गुजराती में भी ये आपने देखा ही होगा कि कुछ मैरिजेस होते हैं वो हफ्ते भर तक चलते हैं. Okay, they are celebrating a number of functions. Okay, and at the last day, marriage and the reception. Okay, so this is the schedule before the marriage also. Then what happens next? The necessary part of the wedding ceremony is a wedding procession of several cars. ठीक है, हमारे में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो वेडिंग प्रोसेशन होता है, जिसे हम वरघोड़ा बोलते हैं. ठीक है, तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. तो यहाँ पे सेवरल कार्स के थ्रू वो प्रोसेशन होता है, पर हमारे में थोड़ा सा डिफरेंट रहता है. The best friends of the groom and bride meet before the wedding a few times, make posters, write speeches, and organize contests. Okay, so bride and groom's friends meet before the marriage and do some arrangements for the speeches, for the contest, etc., etc. Our side also it happens, but the elders meet before. Okay, and they just talk about the other formalities. Okay, other formalities कि आपके तरफ से क्या आएगा, हमारे तरफ से क्या आएगा, कितने लोग आएंगे. These are the discussions, not about the contest or the speeches. When the groom arrives to fetch the bride for the registration, he has to fight to get her. Russians usually live in apartments in tall buildings and the groom has to climb several stairs to reach his bride. ठीक है, यहाँ पे फाइट का मतलब ऐसा नहीं है कि उसको उनके साथ क्या पंचिस से या फिर बॉक्सिंग करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है. ओके, इट्स अ काइंड ऑफ कॉन्टेस्ट कि वो लोग अपार्टमेंट में रहते हैं
तो उसको 1 बाय 1 स्टोरी चढ़कर वहाँ तक उसकी वाइफ उसकी जो फियांसी है उसके साथ पहुँचना पड़ता है और वहाँ से उसको लेकर आना पड़ता है। उससे पहले क्या होता है, बट एट ईच लैंडिंग ही मस्ट आंसर अ क्वेश्चन टू बी अलाउड टू गो अप। ठीक है, जैसे ही एक मंजिल पूरी होती है तो वहाँ पर कोई एक उसका फ्रेंड रहता है जो उनको क्वेश्चन पूछता है, ग्रूम को क्वेश्चन पूछता है और ग्रूम को सही से आंसर देना पड़ता है। अगर वो सही आंसर देता है तो ही उसको ऊपर के मंजिल पे जाने दिया जाता है। एंड द ब्राइड्स फ्रेंड्स आस्क डिफिकल्ट क्वेश्चंस, समटाइम्स अबाउट द ब्राइड, समटाइम्स जस्ट डिफिकल्ट रीडल्स, एंड द ग्रूम मस्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स। ठीक है, अब उसमें ग्रूम के फ्रेंड्स भी साथ में रहते हैं तो ग्रूम के फ्रेंड्स की हेल्प से भी वो आंसर दे सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही मे बी शोन अ फ्यू फोटोज ऑफ बेबी गर्ल्स एंड ही मस्ट से हिज ब्राइडीज। ठीक है, कुछ फोटोग्राफ्स दिखाए जाते हैं और उनको पता करना होता है कि इसमें से ब्राइड का फोटो कौन सा है। ठीक है, हमारे साइड भी कुछ मिलता जुलता ऐसा होता है। ठीक है, जो ग्रूम की सालियाँ होती है वो दरवाजे पर खड़ी रह जाती है। ठीक है, उनको अंदर आने नहीं देती है और जब तक वो पैसे ना दे तब तक उनको अंदर एंट्री नहीं मिलती है, फिर जूते छुपा देती है। सो दीज आर द सम रस्म वी कैन से। ठीक है, हमारे तरफ ऐसी रस्म है कि हम लोग ये करते हैं। ठीक है, और एक मज़े जैसा, गेम जैसा। ठीक है, so these are the similarities little bit. If he gets wrong, he must pay cash to move ahead. After the marriage registration, the newly married couple leaves the guest for a tour of the city sights. After 2 or 3 hours of the city tour, the couple arrives at the reception. ठीक है, हमारे में क्या होता है, जैसे ही मैरिज फिनिश हो गया और शाम को ही अगर रिसेप्शन है तो क्या करते हैं, वो लोग रेडी होने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, तैयार होने के लिए और रिसेप्शन के लिए रेडी होते हैं। द कपल सीट्स एट अ स्पेशली अरेंज्ड टेबल विद देयर फैमिली, फ्रेंड्स एंड इनवाइटेड गेस्ट्स। द रिसेप्शन स्टार्ट्स विद टोस्ट टू द कपल। टोस्ट टू द कपल इन दैट यू नो वेरी वेल, इन मैनी मूवीज यू हैव सीन। ओके, ठीक है, कि वाइन की बॉटल, ठीक है, या शैंपेन की बॉटल खोलने के बाद वो चीयर्स करके सेलिब्रेट करते हैं। सो अ वेडिंग टोस्ट इज अ कस्टम वेयर अ क्लोज फ्रेंड और रिलेटिव ऑफ द ग्रूम और द ब्राइड सेज अ फ्यू वर्ड्स टू विश द कपल, देन एवरीवन रेजेस देयर ग्लास ऑफ वाइन एंड ड्रिंक इट अप एट द सेम मोमेंट। द ग्रूम इज देन आस्क्ड टू किस द ब्राइड। आफ्टर अ फ्यू टोस्ट पीपल स्टार्ट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एंड जनरली हैव फन। ठीक है, हमारे में भी जैसे ही शादी खत्म होती है सब लोग खाना खाने के लिए चले जाते हैं, राइट। आफ्टर सम टाइम द ब्राइड गेट्स स्टोलन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ब्राइड को छुपा दिया जाता है। हमारी तरफ क्या होता है, ग्रूम के जूते छुपा दिए जाते हैं। शी डिसअपियर्स एंड व्हेन द ग्रूम स्टार्ट्स लुकिंग फॉर हर, ही इज आस्क्ड टू पे अ फी। यूजुअली it is his friends who steal the bride. Then there are the bride's friends, they steal the bride's shoe. ठीक है, ब्राइड के शू को छुपा दिए जाते हैं। The groom must pay money for the shoe too. The guests enjoy watching these tussles and continue partying. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। जो ब्राइड होते हैं उसके जूते छुपा दिए जाते हैं और ग्रूम को उसके लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। हमारे साइड में क्या होता है, ग्रूम के जूते छुपा दिए जाते हैं। कौन छुपा देते हैं, उनकी सालियाँ। ठीक है, और उनको फिर ग्रूम को पैसे देने पड़ते हैं अगर उनको जूते वापस चाहिए तो। सो दिस इज द टसल्स। ठीक है, एंड द पीपल हु आर और द गेस्ट हु केम टू participate in the ceremony, they enjoy this tussles, right? Now let's go ahead. Do you think Indian and Russian weddings have any customs in common? With the help of a partner, fill in the table below. So this you can do by your own. Wedding ceremonies in Russia and India. First
column is given for customs similar to Indian ones and custom different from Indian ones. So this you can do by your own. Now let's go ahead. The proposal, originally titled A Marriage Proposal, is a one-act play, a farce. Farce means humorous play, comic play, right? By the Russian short story writer and dramatist एंटोन चेकोव. एंटोन चेकोव से ये एक वन एक्ट प्ले है जो पब्लिश किया हुआ या लिखा हुआ है. इट वॉज रिटन इन 1888 या 89. मीन्स इट्स वेरी ओल्ड, अबाउट 120 years old, 40 years, 140 years old. The play is about the tendency of wealthy families. Tendency means condition or situation. The play is about the tendency of wealthy families to seek ties with other wealthy families to increase their estates by encouraging marriages that make good economic sense. ठीक है, तो ये प्ले किसके बारे में है? दो रिच फैमिलीज के बारे में जो मैरिज करने, अपने बेटा या बेटी के मैरिज करने के बहाने अपना एस्टेट को, अपनी जायदाद को बढ़ाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं. इन मैनी मूवीज यू हैव सीन दिस थिंग. ठीक है, और हमारी लोकेलिटी में भी शायद आपने देखा होगा कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए, पार्टनर्स बनाने के लिए एक दूसरे के साथ मैरिजेस किए जाते हैं. इवान लोमो, a long time wealthy neighbor of Stepan Chubukov, also wealthy, comes to seek the hand of Chubukov's 25 years old daughter Natalia. ठीक है, नटालिया के साथ मैरिज करने के लिए वो प्रपोजल लेकर उनके घर आता है. All three are quarrelsome people and they quarrel over petty issues. ठीक है, मैरिज प्रपोजल लेकर आता है पर वो तीनों कैसे झगड़ालू हैं और छोटी छोटी बात पर झगड़ा करते रहते हैं. द प्रपोजल इज इन डेंजर ऑफ बीइंग फॉरगॉटन अमिड्स ऑल दिस क्वारलिंग. ठीक है, और सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि अब प्रपोजल डेंजर में आ जाता है. बट इकोनॉमिक गुड सेंस एंश्योर्स दैट द प्रपोजल इज मेड आफ्टर ऑल, ऑल्दो क्वारलिंग परहैप्स कंटिन्यूज. ठीक है, और पर उनके सभी के माइंड में क्या था कि उनको बिजनेस बढ़ाने के लिए ये प्रपोजल एक्सेप्ट करना ही होगा, इसलिए वो सब कुछ भूलकर मैरिज करने के लिए रेडी हो जाते हैं. पर जो झगड़ा है वो तो चालू ही रहता है. राइट, लेट्स सी, इट इज द वेरी इंटरेस्टिंग प्ले एंड you will enjoy a lot after reading this play. Let's start. Now let's see first the characters of this play. The first is Stepan Stepanovich Chubukov. He is a landowner. Second is Natalia Stepanova. His daughter 25 years old. Stepanovich Chubukov की daughter है who is 25 years old. Then next is Ivan Vasilyevich Lomo. He is a neighbor of Chubukov, a large and hearty but very suspicious landowner. So these are the three characters in this drama. Let's start the drama. A drawing room in Chubukov's house. Okay, so this is the setting. कहाँ पर play perform हो रहा है. So it is a drawing room in Chubukov's house. Lomo enters wearing a dress jacket and white gloves. Chubukov rises to meet him. Chubukov, my dear fellow, whom do I see? Ivan Vasilyevich, I am extremely glad. Squeezes his hand. Now this is a surprise, my darling. How are you? ठीक है, Chubukov तुरंत ही उसे देखकर खड़ा हो जाता है और उसे विश करता है और पूछता है कि तुम कैसे हो. लोमो, थैंक यू एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन. ठीक है, और इस तरह से उनका कन्वर्सेशन चलता है. चुबको, वी जस्ट गेट अलोंग समहाउ माय एंजल, थैंक्स टू योर प्रेयर्स एंड सो ऑन. ठीक है, और फिर चुबको उसकी तारीफ करना स्टार्ट कर देता है, उसको बड़े बड़े शब्दों से बुलाने लगता है. माई एंजल, थैंक्स टू योर प्रेयर्स एंड सो ऑन. सिट डाउन, प्लीज डू. नाउ यू नो
You shouldn't forget all about your neighbors, my darling. My dear fellow, why are you so formal in your getup? Evening dress, gloves, and so on. Can you be going anywhere, my treasure? My treasure means my good friend. ठीक है, ये बड़े बड़े वर्ड से उसे बुलाता है. ओके, क्योंकि हमने पहले देखा जो लोमो है वो एक बिजनेसमैन है, ठीक है, वेल्दी मैन है. तो शायद उसके साथ अच्छे रिलेशन बनाने के लिए वो ऐसे बड़े बड़े वर्ड से उसको संबोधित करता है ताकि वो उसके बारे में थोड़ा अच्छा सोचे. लोमो, नो, आई हैव कम ओनली टू सी यू, ऑनर्ड स्टेपान स्टेपानोविच. और लोमो भी डिसाइड करके आया है कुछ, उसको क्या करना है, नटालिया का हाथ मांगना है, इसलिए वो भी चुबुको को इतनी ही रिस्पेक्ट से बुलाता है. Chubuko, then why are you in evening dress, my precious? As if you are paying a New Year's Eve visit. ठीक है, फिर चुबुको बोलता है कि अगर तुम बस ऐसे ही विजिट करने के लिए आए हो तो इतने अच्छे कपड़े क्यों पहन के आए हो, जैसे तुम न्यू ईयर की पार्टी एंजॉय करने के लिए आए हो. लोमो, वेल यू सी, इट्स लाइक दिस, टेक्स हिज आर्म. आई हैव कम टू यू ऑनर्ड स्टेपान स्टेपानोविच टू ट्रबल यू विथ अ रिक्वेस्ट. ठीक है, वो बताता है, लोमो बताता है, मैं आपको यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ. नॉट वंस और ट्वाइस हैव आई ऑलरेडी हैड द प्रिविलेज ऑफ अप्लाइंग टू यू फॉर हेल्प एंड यू हैव ऑलवेज सो टू स्पीक. ठीक है, और बताता है कि आज से पहले भी आपने एक या दो बार मेरी हेल्प की है और एक बार और मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ. आई मस्ट आस्क योर पार्डन, आई एम गेटिंग एक्साइटेड. आई शैल ड्रिंक सम वाटर ऑनर्ड स्टेपान स्टेपानोविच. ठीक है, उसको मैरिज के लिए नटालिया का हाथ मांगना है जो चुबुको की डॉटर है. तो वो थोड़ा सा नर्वस हो रहा है, एक्साइटेड हो रहा है, इसलिए वो बोलता है कि मैं पहले थोड़ा पानी पी लूँ. चुबुको, ही हैज़ कम टू बोरो मनी, शांट गिव हिम एनी. What is it, my beauty? ठीक है, ऐसा सोचता है कि शायद साइड में जाके ऐसा सोचता है कि शायद ये पैसे मांगने तो नहीं आया, क्या मैं उसे दूँ या ना दूँ. और फिर उसके पास आकर बोलता है, What is it, my beauty? तुम क्या कहना चाहते हो, बताओ. ठीक है, जैसे हमारे घर में भी ऐसा होता है बहुत बार. अगर कोई आता है, गेस्ट आता है और बोलता है कि मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो हमारे दिमाग में पहला ही ख्याल क्या आता है कि कहीं उसे पैसे की तो ज़रूरत नहीं होगी, मैं उसे दूँ या ना दूँ. सो हियर चुबुको ऑल्सो थिंक्स द सेम. लेट्स सी, लेट्स गो अहेड. व्हाट ही वांट्स. यू सी ऑनर्ड स्टेपानिच, आई बेग पार्डन स्टेपान ऑनोरिच. आई मीन आई एम awfully excited, as you will please notice. In short, you alone can help me, though I don't deserve it, of course, and haven't any right to count on your assistance. Assistance means help. ठीक है, यहाँ पर अगर हम रीड कर रहे हैं तो देख सकते हैं कि वो जैसे हकलाता है, ठीक से बोल नहीं पा रहा है, एक्साइटेड में, नर्वसनेस में. स्टेपानिच बोलता है, देन ऑनोरिच बोलता है. ठीक है, क्योंकि वो घबराया हुआ है या एक्साइटेड है कि वो ठीक से बोल नहीं पा रहा है. उसे लगता है कि उसका प्रपोजल एक्सेप्ट होगा या फिर नहीं होगा, इसलिए शायद ये उसे प्रॉब्लम हो रही है. चुबुको, ओह डोंट गो राउंड एंड राउंड इट डार्लिंग, स्पिट इट आउट. वेल, चुबुको क्या बोलता है, कैसे राउंड एंड राउंड घुमाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी कहना है जल्दी से बता दो. लोमो, one moment, this very minute. The fact is, I have come to ask the hand of your daughter, Natalia Stepanova, in marriage. और फिर आखिर में वो बता देता है कि मैं यहाँ पर आपकी डॉटर का हाथ मांगने आया हूँ मैरिज के लिए. Now let's see what Chubuko answers for this proposal. You can see this, okay? They both are doing the conversation. Both are talking with each other. Chubuko, joyfully, बहुत ही खुश हो जाता है. By Joe, Ivan Vasilevich, say it again. I didn't hear it all. ठीक है, खुश हो जाता है और बोलता है कि एक बार फिर से बताओ, क्या बोला तुमने,
मैंने सुना नहीं ठीक से। लोमो, आई हैव द ऑनर टू आस्क। चुबुको इंटरप्टिंग, उसे बीच में ही रोक देता है और बोलता है, माई डियर फेलो, आई एम सो ग्लैड एंड सो ऑन, यस इंडीड, एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, एम्ब्रेसेस एंड किसेस। एम्ब्रेसेस मीन्स उसे हक कर लेता है, किसेस करने लगता है। आई हैव बीन होपिंग फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, चुबुको भी बताता है कि मैं भी इसके बारे में बहुत समय से सोच रहा था। इट हैज़ बीन माई कंटिन्यूअल डिज़ायर। ठीक है, ये मेरी भी इच्छा थी कि तुम दोनों का मैरिज हो जाए। शेड्स अ टीयर, एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू माई एंजल एज इफ यू वर माई ओन सन। ठीक है, और फिर बताता है कि मैं तो तुम्हें अपने बेटे की तरह सोच रहा था, मान रहा था। मे गॉड गिव यू बोथ हिज हेल्प एंड हिज लव एंड सो ऑन एंड सो मच होप। वॉट एम आई बिहेविंग इन दिस इडियोटिक वे हो। ठीक है, और फिर इतना खुश हो जाता है, इसलिए पूछता है कि क्या मैं एक इडियट की तरह बिहेव कर रहा हूँ। आई एम ऑफ माई बैलेंस विद जॉय, एब्सोल्युटली ऑफ माई बैलेंस। ठीक है, बोलता था मैं मेरा बैलेंस खो चुका हूँ। ठीक है, इतना खुश मैं हो गया हूँ, इससे पहले इतना खुश कभी नहीं हुआ। Oh, with all my soul, I'll go and call Natasha and all that. So here also he just making mistake. नटालिया की जगह पर नताशा बोलता है। ठीक है, क्योंकि वो भी बहुत ही खुश हो गया है। लोमो, greatly moved, honored Stepan Stepanovich, do you think I may count on her consent? Consent means permission. ठीक है, लोमो चुबुको को पूछता है कि आपको क्या लगता है कि वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी। चुबुको, वाई ऑफ कोर्स माई डार्लिंग, एंड एज इफ शी वॉन्ट कंसेंट, अगर वो परमिशन नहीं देती है, सी इज इन लव। इगाड, इगाड मीन्स एक्सक्लेमेशन ऑफ सरप्राइज, शायद वो किसी के प्यार में होगी। सी इज लाइक अ लव सिक कैट एंड सो ऑन, शांट बी लॉन्ग। ठीक है, वो एक लव सिक कैट है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो कुछ दिनों के बाद एक्सेप्ट कर लेगी। लोमो, इट्स कोल्ड, आई एम ट्रैवलिंग ऑल ओवर, जस्ट एज इफ आई हैड गॉट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी। ठीक है, वो बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी एग्जाम हो, मैं नर्वस हो रहा हूँ कि नटालिया मेरे प्रपोजल का क्या आंसर देगी। द ग्रेट थिंग इज आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप। इफ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक, to hesitate, to talk a lot, to look for an ideal or for real love, then I will never get married. ठीक है, और फिर वो एक्सप्लेन करता है कि अगर अभी भी मैं वेट करता हूँ या फिर मैं सोचता हूँ, हेजिटेट फील करता हूँ या बहुत सारी बातें करता हूँ या फिर कोई आइडियल वाइफ का वेट करता हूँ, तो क्या होगा, शायद मेरा मैरिज कभी हो नहीं। ब्र, इट्स कोल्ड। नटालिया, Natalia Stepanova is an excellent housekeeper, not bad looking, well educated. ठीक है, और फिर वो बोलता है नटालिया भी बुरी नहीं है, वो भी गुड लुकिंग है और वेल एजुकेटेड है। What more do I want? इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए? But I'm getting a noise in my ears for excitement. Drinks, and it's impossible for me not to marry. ठीक है, अब मैं मैरिज किए बिना रह नहीं पाऊंगा। रीजन क्या है? एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी। इन द फर्स्ट प्लेस आई एम ऑलरेडी 35। फर्स्ट रीजन क्या है कि वो पहले से ही 35 ईयर्स का हो गया है, क्रिटिकल एज सो टू स्पीक। इन द सेकेंड प्लेस आई ऑट टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ। ठीक है, मुझे अब एक रेगुलर लाइफ की ज़रूरत है। आई सफ़र फ्रॉम पाल्पिटेशन, पाल्पिटेशन मीन्स फास्ट बीटिंग ऑफ द हार्ट। आई एम एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग ऑफुली अपसेट। ठीक है, और मैं ज़्यादातर अपसेट रहता हूँ। एट दिस वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रैम्बलिंग। अभी भी अगर आप देख सको तो मेरे लिप्स जो है वो बहुत ही ट्रैम्बल हो रहे हैं। एंड देयर इज अ ट्विच इन माई राइट आईब्रो। ठीक है, और मेरी जो राइट आईब्रो है वो भी थोड़ी ट्विच हुई है। बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल इज द वे आई स्लीप। और सबसे बुरी बात क्या है? जैसे मैं सोता हूँ। I no sooner get into bed and begin to go off when suddenly something in my left side gives a pull. जैसे ही मैं सोने जाता हूँ, सो जाता हूँ, तो मुझे क्या लगता है कि मेरे लेफ्ट साइड से कुछ पुल हो रहा है, कोई पुल कर रहा है।
एंड आई कैन फील इट इन माई शोल्डर एंड हेड। ठीक है, और फिर वो धीरे धीरे मुझे शोल्डर में फील होता है, फिर मेरे हेड में फील होता है। आई जंप अप लाइक अ लेनाटिक, और फिर क्या होता है, मैं वहां से जंप कर लेता हूं जैसे कोई मैड पर्सन हो, पागल हो। वॉक अबाउट अ बीट एंड लाई डाउन अगेन, फिर क्या करता हूं, थोड़ा चलता हूं और फिर से सोने का ट्राई करता हूं। बट एज सुन एज आई बिगिन टू गेट ऑफ टू स्लीप देयर इज अनदर पुल, और जैसे ही फिर से सोने का ट्राई करता हूं तो फिर से मुझे वो पुल का फीलिंग आता है, पुल करने का, कोई पुल कर रहा हूं ऐसा लगता है। एंड दिस में हैपन 20 टाइम्स, और ऐसा कितनी बार होता है, 20 टाइम्स। दिस यू हैव टू रिमेंबर, इट कैन बी आस्क्ड इन 1 मार्क क्वेश्चन। नटालिया स्टेपनोवा कम्स इन, और वो जब डिस्कस कर रहे हैं तभी नटालिया वहां पर आती है। नटालिया, वेल देयर इट्स यू, एंड पापा सेड गो देयर इज अ मर्चेंट कम फॉर हिज गुड्स, हाउ डू यू डू इवान वसलविच। ठीक है, नटालिया बोलती है कि कोई पापा ऐसा बोल रहे थे कि कोई मर्चेंट आया है और तुम यहां पर हो। लोमो, हाउ डू यू डू ऑनर्ड नटालिया स्टेपनोवा। नटालिया, you must excuse my apron and neglige. Neglige means lightweight night gown. ठीक है, नटालिया क्या बोलती है, प्लीज तुम मुझे मेरे एप्रन और नेग्लिज लौटा दो ना। वी आर शेलिंग पीस फॉर ड्राइंग, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, शेलिंग मीन्स रिमूव द आउटर कवर, हम जो पीस के जो आउटर कवर है वो रिमूव कर रहे हैं। वाई हैवंट यू बीन हियर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, सिट डाउन, वॉन्ट यू हैव सम लंच। ठीक है, तुम थोड़ा खाना पसंद करोगे, अभी तक खाना नहीं है। नो थैंक यू, आई हैव हैड सम ऑलरेडी। लोमो बोलता है कि मैंने पहले से ही लंच कर लिया है। देन स्मोक, तो फिर थोड़ा स्मोक कर लो। हियर आर द मैचेस, यहाँ पे मैच बॉक्स पड़ा हुआ है। द वेदर इज स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड मीन्स ब्राइट, स्प्लेंडिड नाउ, बट yesterday it was so wet that the workmen didn't do anything all day. ठीक है, पर कल मौसम थोड़ा ठीक नहीं था, इसलिए जो वर्कर्स थे उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। हाउ मच हे, हे मीन्स ग्रास, हाउ मच हे हैव यू स्टैक्ड, स्टैक मीन्स अरेंज इन अ पैटर्न, अभी तक तुमने कितना ग्रास अरेंज कर लिया है। जस्ट थिंक आई फेल्ट ग्रीडी एंड हैड अ होल फील्ड कट एंड नाउ आई एम नॉट एट ऑल प्लीज्ड अबाउट इट बिकॉज आई एम अफ्रेड माई हे में रॉट। ठीक है, और वो बोलती है कि मैं इतनी लालची हो गई थी कि मैंने क्या किया, पूरा का पूरा जो फील्ड है उसे कट करवा दिया और हे कट करके स्टैक कर दिया, पर अब मुझे डर लग रहा है कि शायद वो सब कुछ सड़ ना जाए। आई ऑट टू हैव वेटेड अ बिट, मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए। बट व्हाट्स दिस, वाई यू आर इन इवनिंग ड्रेस, वेल आई नेवर, आर यू गोइंग टू अ बॉल और व्हाट। ठीक है, फिर वो उसकी तरफ देखकर पूछती है कि तुम ये इवनिंग ड्रेस में यहाँ पर क्यों आए हो, कहीं पे जा रहे हो। दो आई मस्ट से यू लुक बेटर, टेल मी वाई आर यू गॉट अप लाइक दैट। ठीक है, और पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, व्हाट इज द पर्पस टू विजिटिंग माई हाउस। ओके, यहाँ हियर यू कैन सी बॉल, बॉल मीन्स पार्टी। ओके, लोमो, अब लोमो आंसर देता है, यू सी ऑनर्ड नटालिया स्टेपनोवा, द फैक्ट इज आई हैव मेड अप माई माइंड टू आस्क यू टू हियर मी आउट। ऑफ कोर्स यू विल बी सरप्राइज्ड एंड परहैप्स even angry, but it's awfully cold. ठीक है, लोमो बोलता है कि मैं यहाँ पर जिस बात के लिए आया हूँ उसकी वजह से शायद तुम गुस्सा हो सकती हो, सरप्राइज हो सकती हो, पर मुझे बताना जरूरी है। What's the matter? Well, Lomo, I shall try to be brief. You must know, honored Natalia Stepanova, that I have long since my childhood, in fact, had the privilege of knowing your family. ठीक है, बोलता है कि मैं बहुत ही छोटा था तब से आपकी फैमिली को पहचानता हूँ। My late aunt and her husband, from whom, as you know, I inherited my land, always had the greatest respect for your father and your late mother. ठीक है, और फिर बताता है कि जिनसे मुझे ये जो ज़मीन है वो मिली है, वो लोग
आपके फादर और मदर को बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे और मैं भी उनकी बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ. The Lomos and the Chubukos have always had the most friendly and I might it almost say the most affectionate regard for each other. ठीक है, और फिर बताता है लोमोस फैमिली और चुबुकोस फैमिली पहले से ही बहुत ही अच्छी तरह से रहते हैं. You will remember that my auction meadows means प्लेस वेयर कैटल ग्रेज, जहाँ पे जो कैटल्स होते हैं वो घास चरने के लिए जाते हैं वो जगह. टच योर बर्च वुड्स. ठीक है, और फिर वो बोलते हैं तुम्हें याद ही होगा कि मेरा जो एक्शन मीडो है वो आपके बर्च वुड के टच होकर है. नटालिया, एक्सक्यूज माई इंटरप्टिंग यू. यू से माई ऑक्शन मीडोज बट आर दे योर्स. ठीक है, और फिर नटालिया पूछती है कि क्या ऑक्शन मीडोज तुम्हारे हैं. Yes, mine. What are you talking about? Auction meadows are ours, not yours. ठीक है, नटालिया क्या बोलती है कि वो तुम्हारा नहीं हमारा है. No, mine honored Natalia Stepanova. नटालिया बोलती है well, I never knew that before. How do you make that out? नटालिया बोलती है कि मुझे इससे पहले इसके बारे में नहीं पता था. तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि वो तुम्हारे हैं. Lomo, how? I'm speaking of those auction meadows which are wedged in between your birch woods and the burnt marsh. Wedge means situated. ठीक है, लोमो बोलते हैं मैं उस ऑक्शन मीडोज की बात करता हूँ जो तुम्हारे बर्च वुड और बर्न मार्श के बीच में है. Yes, yes, they are ours. नटालिया बोलती है हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ और वो हमारे हैं. लोमो बोलता है No, you are mistaken, honored Natalia Stepanova. They are mine. वो तुम्हारे नहीं मेरे हैं. नटालिया, जस्ट थिंक इवन वसलविच, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स. कब से वो तुम्हारे हैं. लोमो, हाउ लॉन्ग. एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर. मुझे जब तक याद है वो हमारे ही है. नटालिया, रियली यू वॉन्ट गेट मी बिलीव दैट. लोमो, बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स ऑनर्ड नटालिया स्टेपानोवा. ठीक है, लोमो क्या बोलते हैं तुम डॉक्यूमेंट्स देख सकते हो कि वो मेरे हैं. ऑक्शन मीडोज इट्स ट्रू वर वंस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट. ठीक है, पहले ये डिस्प्यूट का एक सब्जेक्ट था बट नाउ एवरीबडी नोज दैट दे आर माइन. पर अब सबको पता है कि वो मेरे हैं. देयर इज नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट. यू सी माई आंट्स ग्रैंड मदर gave the free use of these meadows in perpetuity to the peasants of your father's grandfather, in return for which they were to make bricks for her. ठीक है, अब वो एक्सप्लेन करता है कि कैसे वो तुम्हें दिया गया था. बताता है कि मेरी जो आंट थी उसकी जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने ये जो मीडोज है उसको तुम्हारे पापा के पीजेंट्स को, तुम्हारे पापा के ग्रैंडफादर के पीजेंट्स को परपेचुएटी मीन्स परमानेंटली उसमें काम करने के लिए दिया था. और रिटर्न में उन लोगों को मेरी आंट के ग्रैंड मदर के लिए ईंटें बनानी थी. ब्रिक्स मीन्स ईंटें बनानी थी. द पीजेंट्स बिलोंगिंग्स मीन्स रिलेटिव्स बिलोंगिंग्स टू योर फादर्स ग्रैंडफादर हैड द फ्री यूज ऑफ मीडोज फॉर 40 ईयर्स. और उनको 40 साल के लिए ये यूज करने के लिए दिया था. And had got into the habit of regarding them as their own when it happened that. और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो अपना ही मान लिया, बल्कि उनको सिर्फ 40 साल के लिए यूज करने के लिए दिया था. No, it isn't at all like that. ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था. Both grandfather and great grandfather reckoned means calculate, reckoned that their land extended to burnt mass. ठीक है, उन्होंने कैलकुलेट किया है कि उनका लैंड जो है वो बर्न्ट मास तक फैला हुआ है. विच मीन्स दैट ऑक्शन मीडोज वेर आर्स. इसका मतलब क्या है, ऑक्शन मीडो हमारे थे. आई डोंट सी वॉट देयर इज टू आर्ग्यू अबाउट. इट्स सिंपली सिली. ठीक है, इसके बारे में आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं है. मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो हमारे हैं. लोमो, I will show you the documents, Natalia Stepanova. लोमो बताता है कि मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट्स दिखा सकता हूं कि वो हमारे हैं. नटालिया क्या बोलती है, नो यू आर सिंपली जोकिंग और मेकिंग फन ऑफ मी. ठीक है, नटालिया क्या बोलती है, शायद तुम जोक कर रहे हो या फिर मेरा मजाक उड़ा रहे हो.
What a surprise! We have had the land for nearly 300 years and then we are suddenly told that it isn't ours. ठीक है, और नटालिया क्या बोलती है, जिसको हम 300 ईयर्स से 300 साल से यूज कर रहे हैं और फिर कोई आके हमें बताता है कि वो हमारा नहीं है, तो मैं कैसे मान लूं? इवान वसेलविच, I can hardly believe my own ears. These meadows aren't worth much to me. They only come to 5 desiatins. Desiatins means around 1 hectare. कि वो पूरा लैंड शायद 1 हेक्टर जितना, 5 हेक्टर जितना है. And are worth perhaps 300 rupees. और उसकी कीमत 300 रुपल से ज़्यादा नहीं होगी. But I can't stand unfairness. Say what you will, I can't stand अनफेयरनेस. पर मैं अनफेयरनेस को टॉलरेट नहीं करूंगी. वो मेरे है और मैं उसको किसी को लेने नहीं दूंगी. अब लोमो क्या बोलता है? हियर मी आउट, मुझे अच्छी तरह से सुनो. आई इम्प्लोर यू, इम्प्लोर यू मीन्स विथ रिस्पेक्ट टेल यू. द पीजेंट ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर, एज आई हैव ऑलरेडी हैड द ऑनर ऑफ एक्सप्लेनिंग टू यू, यूज्ड टू बेक ब्रिक्स फॉर माई आंट्स ग्रैंडमदर. फिर से वो एक्सप्लेन करता है, ठीक है लोमो, कि आपके फादर के ग्रैंडफादर के लिए जो वो हमारे खेत में ईंटें बनाने का काम करते थे. और किसके लिए? मेरी आंट के ग्रैंडमदर के लिए. नाउ माय आंट्स ग्रैंडमदर विशिंग टू मेक देम अ प्लीजेंट. ठीक है, और क्यों? क्योंकि मेरी जो आंट थी, वो आंट की ग्रैंडमदर, वो आपके लोगों को खुश करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने ये उनको दे दिया था. Natalia, I can't make head or tail of all this about aunts and grandfathers and grandmothers. The meadows are ours, that's all. नटालिया बोलती है, मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना, मुझे पता है कि ये हमारा है, बस बात खत्म. लोमो बोलता है, माइन, मेरे है. नटालिया, ours. You can go on proving it for 2 days on end. You can go and put on 15 dress jackets, but I tell you, they are ours, ours, ours. I don't want anything of yours and I don't want to give anything of mine so that. ठीक है, नटालिया बोलती है कि वो हमारे हैं, तुम चाहे कुछ भी कर लो, वो मैं मानने वाली नहीं हूं कि वो तुम्हारे हैं. लोमो बोलता है, नटालिया स्टेपनोवा, I don't want the meadows, but I am acting on principle. If you like, I will make you a present of them. टोमो बोलता है कि अगर तुम्हें उतना ही पसंद है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें वो गिफ्ट कर दूंगा, पर मैं अपने प्रिंसिपल, अपने वैल्यूज को छोड़ने वाला नहीं हूं, वो मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे. नटालिया, आई कैन मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ बिकॉज दे आर माइन. ठीक है, नटालिया बोलती है कि मैं ही अपने आप को प्रेजेंट कर दूंगी क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे हैं. योर बिहेवियर इवन वेसलविच इज स्ट्रेंज टू से द लीस्ट. ठीक है, मैं एट लास्ट ऐसा बोलना चाहूंगी कि तुम्हारा जो बिहेवियर है बहुत ही स्ट्रेंज है. अप टू दिस वी हैव ऑलवेज थॉट ऑफ यू एज अ गुड नेबर, अ फ्रेंड. लास्ट ईयर वी लेंट यू आवर थ्रेशिंग मशीन. Although on that account we had to put off our own threshing till November, but you behave to us as if we were gypsies. Gypsies means homeless person. ठीक है, और फिर बताती है कि हम तो तुम्हें एक अच्छा नेबर समझ रहे थे, अच्छा फ्रेंड समझ रहे थे और हम आपकी हेल्प भी करते थे. लास्ट ईयर हमने आपको हमारा थ्रेशिंग मशीन भी दिया था और जिसकी वजह से हम हमारा खेत का थ्रेशिंग नहीं कर पा रहे थे और वो नवंबर में हमें करना पड़ा, पर फिर भी हमने तुम्हारी हेल्प की और तुम समझते हो जैसे हम होमलेस पर्सन हो. गिविंग मी माई ओन लैंड इंडीड, नो रियली, दैट्स नॉट एट ऑल नेबरली. ये अच्छे नेबर की निशानी नहीं है. इन माई ओपिनियन इट्स इवन इम्पुडेंट. इम्पुडेंट मीन्स इंसल्टिंग इफ यू वॉन्ट टू नो. ठीक है, ये एक इंसल्ट जैसा है. लोमो क्या बोलता है? देन यू मेक आउट दैट आई एम अ लैंड ग्रैबर. लोमो बोलता है कि क्या तुम मुझे एक लैंड ग्रैबर मानती हो? मैडम, नेवर इन माई लाइफ हैव आई ग्रैब्ड एनीबडीज एल्स लैंड एंड आई शैंट अलाउ एनीबडी टू एक्यूज मी ऑफ हैविंग डन सो. एक्यूज मीन्स ब्लेम. ठीक है, अब लोमो बताता है मैंने आज तक मेरी लाइफ में ऐसा किया नहीं है और किसी को मैं ऐसा ब्लेम भी करने नहीं दूंगा.
quickly steps to the sharaf. Sharaf means bottle or glass and drinks more water. वो फिर ग्लास लेके थोड़ा और पानी पीता है. ऑक्शन meadows are mine. और बोलता है कि वो मेरे हैं. It's not true, they are ours. लोमो बोलता है मेरे. So here we'll stop this video and the remaining part we will see in the next video. I hope whatever I have explained till now you understood well, and please read the text whatever I have explained. You will enjoy a lot if you will read also. Thank you. Have a nice day. Bye bye.